last lecture, right? कल भी नहीं किया था. The previous lecture we have started. So we have completed with the singly linked list, right? In the singly linked list, we have seen the first algorithm, that is insertion algorithm. See, first I will be covering insertion algorithm for each and every type of linked list, like for the singly, for the doubly, and then circular. और उसके बाद में during the practical sessions I will teach you how to delete. Okay, so delete algorithm we are not going to see during the theory lectures, but I will be covering a delete operation during the practical session, because deletion में कुछ ज़्यादा है नहीं, it is just a two line code. Okay, so deletion we are not going to see during the theory part, but we will see during the practical. Okay, so today I will be covering the insertion operation on doubly linked list. So we will see how to insert a new node in the doubly linked list. उससे पहले फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं. So what we have seen, a linked list is a collection of a nodes, right? It is a collection of nodes. और collection of nodes, node क्या होता है? The node, it is divided, it is a data structure that is divided into two parts. The first part is called as a data, and the second part is called as a link part or the next part. So it is a, clearly you can see it is a collection of a dissimilar data type. So that is the reason why you will need a structure to declare a node in a C program. So here it is a declaration, or this is a programmatic declaration of a node. Struct node, the first part is integer data, and the second part is the struct node pointer of next. Okay, the struct node pointer of next. Either you can have a next here or you can have a link here. Again, instead of an integer, you can have float, you can have character, you can have any type of data, right? So this is about a linked list. Then we have seen there are mainly three types of a linked list, right? A singly, doubly, and a circular linked list. So singly linked list क्या होता है? If your node is divided into only two parts, or in a different language, if my linked list is storing only the next address node, then I can say that that linked list is a singly linked list, right? And if my linked list is storing, okay, the address of first and the last, कितना लेट आते हो? मैंने बोला ना मैं ब्लॉक कर रही हूँ, उसके बाद में भी 5 मिनट्स मैंने चलो कुछ नहीं, बोल दो. I have unlocked the meeting. है और कोई? आ गए हैं जितने आने वाले थे. रोल नंबर 3. चलो ओके, सबको बोल रही हूँ प्लीज इतना लेट मतलब 5 मिनट्स इट्स ओके. मैं 5 मिनट तक लेक्चर स्टार्ट भी नहीं करती हूँ, उसके बाद में इतने 10-10 मिनट लेट मत आया करो. स्टार्टिंग अगर पार्टी अगर निकल जाता है तो इट्स डिफिकल्ट, राइट? सो आई एम अगेन लॉकिंग द मीटिंग. Chalo. So the singly linked list, it is if your linked list is storing only one address, that is the address of the next node, then I can say that this is the singly linked list. If my linked list is storing two addresses, like the address of the first node and address of the next node, then I can say that this is a doubly linked list. And if instead of storing the null in the link part, if your last node stores the address of a first node, then I can say that that is a circular linked list. Keep in mind, a circular linked list can be singly as well as doubly. Okay, तो सर्कुलर के अगेन दो पार्ट होते हैं. तो इंसर्शन एल्गोरिथम कितने पार्ट्स के लिए हम लोगों को देखना है? तो वी हैव टू सी द इंसर्शन फॉर सिंगली, डबली, सर्कुलर सिंगली एंड सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट. सिमिलरली डिलीशन भी होगा. ओके, सो ये हो जाते हैं टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम. देन वी हैव स्टार्टेड विद द फर्स्ट एल्गोरिथम, दैट इज इंसर्ट एल्गोरिथम इन एसएलएल. एसएलएल स्टैंड फॉर सिंगली लिंक लिस्ट, राइट? अभी इंसर्शन एल्गोरिथम जो भी आप परफॉर्म करोगे, you can insert a new element at 3 position. Okay, first होता है insert a new node at the first, second होता है insert a node at the last, and insert a node at the specific location. ये सारे के सारे position same रहेंगे whether you are talking about the singly, doubly or the circular. You have to insert a new node at the first, you have to insert a new node at the last or in between. Okay, so what we have seen के insert a node at the first. तो ये फर्स्ट नोड के अंदर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है इसको. इफ यू आर क्रिएटिंग वेरी फर्स्ट नोड एंड इफ यू आर इंसर्टिंग द नोड एट द फर्स्ट,
है ना। सो यहाँ पे क्या देखा था हमने, कोई भी एल्गोरिदम आता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट वन इज क्रिएट अ न्यू नोड, इंसर्ट द डेटा, एडजस्ट द पॉइंटर। ये 3 स्टेप में अगर आप लोगों को याद रह जाएगा तो एल्गोरिदम इज वेरी इजी। ओके, सो आई एम क्रिएटिंग अ नोड फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं जो नोड क्रिएट कर रही हूँ राइट नाउ, आई एम क्रिएटिंग अ नोड फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, अगेन 3 स्टेप में डिवाइड करना है। आई हैव क्रिएटेड अ न्यू नोड, यहाँ पे मैंने एक न्यू नोड क्रिएट कर दिया है, इसका नाम मैंने दे दिया है स्टार्ट। मैं पहले से इसको नाम स्टार्ट दे रही हूँ सो दैट मुझे इसको फिर से रीनेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो दिस इज माय न्यू नोड विद द नेम स्टार्ट। क्या करना है, फर्स्ट क्रिएट ए न्यू नोड। नोड कैसे क्रिएट होता है, विद द हेल्प ऑफ अ मैलॉक फंक्शन। कैसे लिखोगे, स्टार्ट इज इक्वल टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, इसमें डेटा असाइन करना है। So suppose I am inserting the data as a 10. कैसे लिखोगे, start of data is equals to what, 10. And you can see this is the first node ना, there are no nodes after this node. तो यहाँ पे इसके लिंक फिर में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नल। सो ये हो गया आप लोगों का स्टेप नंबर 1। इंसर्शन एट द फर्स्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट इज इफ यू आर क्रिएटिंग द फर्स्ट नोड, एंड द सेकंड थिंग इफ यू आर क्रिएटिंग अ न्यू नोड एट द स्टार्ट। मैं अब मैं स्टार्ट में नोड इंसर्ट कर रही हूँ। so this is my diagram, right? अभी मैं किसके पहले नोड डालना है मुझे, तो ये 10 के पहले नोड डालना है। so what I will do, I will just draw one diagram here। मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर दूंगी। स्टार्ट ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं इसको स्टार्ट नेम राइट नाउ नहीं दे सकती हूँ। आई विल जस्ट गिव नेम एज अ पी। अगेन दिस फॉलो दिस 3 स्टेप्स। क्रिएट ए न्यू नोड, कैसे क्रिएट होगा, p इज इक्वल टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, इंसर्ट द डेटा। यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर रही हूँ, दैट इज 20। और थर्ड स्टेप में क्या बोला है कि इंसर्ट दैट एडजस्ट द पॉइंटर। पॉइंटर कैसे एडजस्ट होगा, जस्ट टेल मी। p का लिंक किसको जाके अटैच होना चाहिए, स्टार्ट को, है ना। p ऑफ लिंक शुड गेट अटैच टू द स्टार्ट। तो कैसे लिखोगे, p ऑफ लिंक इज इक्वल्स टू स्टार्ट। ये हो गया मेरा p ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, लिंक लिख रही हूँ मैं, l लिख रही हूँ राइट नाउ। l स्टैंड्स फॉर द लिंक, राइट। p ऑफ लिंक इज इक्वल्स टू स्टार्ट एंड s स्टैंड फॉर द स्टार्ट। अभी इसके आगे क्या करना पड़ेगा, वन मोर थिंग इज रिमेनिंग। क्या रिमेनिंग है, क्या बोला था कि फर्स्ट नोड का नेम ईच एंड एवरी टाइम क्या आना चाहिए, इट शुड बी स्टार्ट। एंड राइट नाउ पहले नोड का नेम क्या है, t है। तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, वहां पे वैल्यू असाइन करनी है। किसकी वैल्यू किसको असाइन करनी है, तो स्टार्ट को किसकी वैल्यू असाइन होनी चाहिए, p की। ओके, सो स्टार्ट इज इक्वल टू क्या लिखना है आप यहाँ पे आप लोगों को, तो स्टार्ट इज इक्वल टू p। सो वी हैव डन विद द फर्स्ट एल्गोरिथम, दैट इज इंसर्टिंग अ न्यू नोड एट द फर्स्ट। किसी को डाउट है यहाँ पे, ए एस इज इक्वल एक्चुअली असाइनिंग द वैल्यू। जो पहले की वैल्यू थी इसके अंदर p मतलब स्टार्ट के अंदर हम लोगों को उससे कोई भी लेना देना नहीं है। आई वांट के स्टार्ट के अंदर दूसरी वैल्यू जाए, इसीलिए मैंने स्टार्ट इज इक्वल टू p कर दिया है, राइट। मैम टेम्प इक्वल तो स्टार्ट नहीं आएगा? नहीं आएगा, टेम्प इज इक्वल टू अगर स्टार्ट करते हो राइट, तो स्टार्ट की वैल्यू टेम्प में जाएगी। हमें वो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, p के अंदर अभी जो वैल्यू है वो स्टार्ट के अंदर जानी चाहिए, है ना। जो p के अंदर वैल्यू है राइट नाउ 20, वो जाना चाहिए। ये रूल कैसे वर्क करता है, जस्ट टेल मी। जो राइट हैंड साइड में होता है उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को असाइन होती है। ओके, मैंने अगर यहाँ पे ऐसे लिखा p इज इक्वल टू स्टार्ट, व्हाट आई हैव रिटन, p इज इक्वल टू स्टार्ट। नाउ जस्ट टेल मी, स्टार्ट के अंदर वैल्यू कौन सी है, 10 है। तो क्या हो जाएगा, p वाला नोड, ये स्टार्ट वाला जो नोड है उसको ही नाम क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। वी डोंट वांट दैट। हम लोगों को क्या चाहिए, तो फर्स्ट नोड का जो नेम है वो नेम मुझे क्या चाहिए, दैट नेम आई वांट एज अ स्टार्ट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट असाइन द वैल्यू। किसकी वैल्यू असाइन करनी है, p की वैल्यू असाइन करनी है। जिसकी वैल्यू असाइन होगी दैट शुड बी टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, राइट। सो p राइट में, उसके आगे इज इक्वल्स टू, और किसको वैल्यू असाइन करनी है, मुझे तो स्टार्ट को करनी है। सो दैट इज रीजन व्हाई s इज इक्वल्स टू p। ओके, p इज इक्वल्स टू s नहीं आएगा, temp इज इक्वल्स टू स्टार्ट भी नहीं आता है। दिस इज अ थंब रूल, दिस इज अ थंब रूल फॉर द असाइनमेंट ऑपरेटर इन C, इफ यू रिमेंबर, राइट। ये ऐसे करते हो तो ये गलत हो जाएगा। अगर इफ आई हैव रिटन p इज इक्वल्स टू s, तो स्टार्ट की वैल्यू p को जानी है। ये ऐसे नहीं होता है। स्टार्ट में कौन सी वैल्यू है, स्टार्ट में वैल्यू है 10, तो p को भी कौन सी वैल्यू असाइन हो जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगा। डू यू वांट दैट? कौन था रोल नंबर? नो मैम, 37। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, क्योंकि मैम स्टार्ट कर रहे हैं वहां से इंसर्ट करना है ना, स्टार्ट तो करने वहां से टेम्प में इंसर्ट स्टार्ट। नहीं करना है। सी, ये नोड मैंने पहले बना दिया था। ओके, इसका नेम क्या था, स्टार्ट था। अभी क्या किया मैंने, इसके पहले एक नोड बनाया। हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट नोड का नेम क्या आना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। ओके, व्हाट यू आर सेइंग दैट टेम्प इज इक्वल्स टू स्टार्ट होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देख के आप बोल रहे हो टेम्प इज इक्वल्स टू स्टार्ट,
राइट। तो स्टार्ट में राइट नाउ कौन सी वैल्यू है, जस्ट टेल मी। ये डायग्राम को देख के मुझे बोलो स्टार्ट में कौन सी वैल्यू है राइट नाउ। 10। 10 है, तो फिर टेम्प पे कौन सी वैल्यू जाएगी, 10 जाएगी ना। तो ये फर्स्ट नोड को हाँ नहीं जाएगा, ये फर्स्ट नोड को नेम ही नहीं जाएगा कोई भी। ये यहाँ पे ही आप लोगों का स्टार्ट बन जाएगा और यहीं पे आप लोगों का टेम्प बन जाना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर इंसर्टिंग अ न्यू नोड बिफोर द स्टार्ट। ये जो पहला नोड था ना, उसके पहले मैं एक नोड इंसर्ट करवा रही हूँ। तो ये नोड को मुझे स्टार्ट बनाना है, ना कि मुझे ये नोड को मुझे टेम्प बनाना है, ओके मैम। राइट। और जो तुम बोल रहे हो ना कि स्टार्ट ही पहला नोड होगा, तो ऐसा नहीं होता है। स्टार्ट के पहले भी आप लोग नोड डाल सकते हो, आप लोगों को सिर्फ उसको रीनेम करना पड़ेगा। ये ना एक बार प्रैक्टिकल में हम लोग देख लेंगे थोड़ा, मे बी एट दैट टाइम ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग के कल ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया, स्टार्ट इज इक्वल टू टेम्प वाला। ये सबको समझ में आ रहा है? आई होप सो। नहीं, मैम और एक बार समझाओ ना। कौन सा वाला, स्टार्ट इज इक्वल टू टेम्प वाला ये या कंफ्यूजन पूरा? है, कौन सी वैल्यू कहाँ जाती है ना, उसमें ही नहीं पता चलता। मतलब कौन सी वैल्यू, मतलब आर यू टॉकिंग अबाउट द स्टार्ट इज इक्वल टू टेम्प वाला? हाँ वही। ओके जस्ट सी, मैं फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने जो पहले से किया था वो अभी अभी राइट नाउ ना, ये एल्गोरिथम पे ज्यादा फोकस मत करो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने एक नोड बनाया था, है ना, दिस वाज माय फर्स्ट नोड। इसका नाम क्या है, स्टार्ट है ना। या मैंने पहले से स्टार्ट क्यों बना दिया था, तो मुझे फिर से उसको असाइन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बनाया था। ओके तो ये हो गया स्टार्ट। यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दिया मैंने 10, और इसके आगे कोई नहीं, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैंने नल डाल दिया है। अभी क्या करना है मुझे, तो क्या बोल रहा है एल्गोरिथम, इंसर्ट अ नोड एट द फर्स्ट। एट द फर्स्ट मतलब क्या होता है, तो ये स्टार्ट के पहले भी आप लोगों को, इसके पहले आप लोगों को कोई नोड इंसर्ट करवाना है, राइट। तो यहाँ पे क्या करूंगी, आई विल ड्रॉ डायग्राम ओवर हियर। मैंने यहाँ यहीं पे एक डायग्राम ड्रॉ कर ली। अभी स्टार्ट तो मेरा पहले से है, तो मैं इसको फिर से स्टार्ट नहीं दे सकती हूँ, सो आई विल गिव नेम एज अ टेम्प। चलो यहाँ पे टेम्प है, मैं भी यहाँ पे टेम्प ही दे रही हूँ। अभी ये नल नहीं आएगा यहाँ पे, आई एम गिविंग नेम एज अ टेम्प। Follow three steps, that temp is equals to malloc size of struct node, temp of data is equals to 20. Now you want to adjust the pointer. इसके आगे कौन जाने वाला है, तो ये स्टार्ट जाएगा। तो टेम्प ऑफ लिंक किसका एड्रेस स्टोर करेगा, तो स्टार्ट का एड्रेस स्टोर करेगा। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का स्टार्ट। सो टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाट, और टेम्प ऑफ लिंक इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू स्टार्ट। ऐसे लिखोगे तो ये कनेक्शन इन दोनों के बीच में एस्टेब्लिश हो जाएगा। नाउ जस्ट टेल मी व्हाट आई सेड, दैट the first the name of the first node always should be start ही होना चाहिए। बट राइट नाउ स्टार्ट के पहले कौन सा नोड है, टेम्प है। तो फर्स्ट नोड का नेम क्या जा रहा है, तो फर्स्ट नोड का नेम जा रहा है राइट नाउ टेम्प। मुझे क्या चाहिए, तो फर्स्ट नोड का नेम मुझे स्टार्ट करवाना है, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे किसको वैल्यू असाइन करनी है, मुझे टेम्प को वैल्यू असाइन नहीं करनी है। आई वांट टू असाइन अ वैल्यू टू द स्टार्ट नोड को मुझे वैल्यू असाइन करनी है। सो जिसको वैल्यू असाइन करनी है वो मैं लिखूंगी लेफ्ट हैंड साइड में। सो आई वांट टू असाइन अ वैल्यू टू द स्टार्ट, तो स्टार्ट। और किसकी वैल्यू जानी चाहिए राइट नाउ, तो स्टार्ट के अंदर कौन सा डेटा जाना चाहिए, 20। और 20 डेटा कौन से नोड के अंदर है, टेम्प। सो व्हाट आई विल राइट, स्टार्ट इज इक्वल्स टू टेम्प। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, सिर्फ स्टार्ट इज इक्वल्स टू टेम्प। अगर समझो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, मैंने ये रिवर्स में लिखा है, व्हाट आई हैव रिटन, सॉरी, आई हैव रिटन सपोज टेम्प इज इक्वल्स टू स्टार्ट, मैंने ऐसे कुछ लिख दिया है। जैसे आप लोग बोल रहे हो ना, उस तरीके से मैंने लिखा टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट। अभी क्या होगा समझो, किसकी वैल्यू किसको असाइन होगी, तो जो स्टार्ट में होगा ना वो टेम्प में चला जाएगा, जो स्टार्ट में होगा वो टेम्प में चला जाएगा। तो स्टार्ट के अंदर क्या है, स्टार्ट के अंदर 10 है, तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ अ नोड हो जाएगा। नो डाउट यहाँ पे स्टार्ट तो आ जाएगा, लेकिन जो आपका प्रीवियस डेटा था वो प्रीवियस डेटा यहाँ से ओवरलैप हो जाएगा। क्यों, बिकॉज व्हाट यू हैव रिटन टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट। तो स्टार्ट के अंदर जो भी डेटा था या जो भी कुछ था, एड्रेस था, वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, तो टेम्प में चला जाएगा। वी डोंट वांट दैट। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को सिर्फ इतना करना है कि स्टार्ट जो नोड था, ओके, उसको फर्स्ट नोड पे लेके जाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो टेम्प के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू किसको असाइन करनी पड़ेगी, तो स्टार्ट को असाइन करनी पड़ेगी। तो टेम्प, हाँ हाँ, मीटिंग अनलॉक कीजिए ना, 1 मिनट वेटिंग इन लॉबी। कर दिया है, बोल दो। राइट, तो ये स्टार्ट इज इक्वल टू टेम्प।
that is the reason why you have to write start is equals to temp. temp is equals to start नहीं लिखते हैं, है ना. हम लोग कैसे काम करते हैं सी के अंदर. सपोज आई वांट टू असाइन द एडिशन, मुझे c is equals to a plus b लिखना है ना. आई वांट टू राइट c is equals to a plus b, इस तरीके से लिखते हैं ना हम लोग. तो a एंड b की वैल्यू किसको असाइन करनी है हम लोगों को, c में. इसी तरह के यहाँ पे क्या करना है मुझे, तो temp की वैल्यू असाइन करनी है. किसको असाइन करनी है, स्टार्ट को. तो व्हाट आई विल राइट, स्टार्ट इज इक्वल्स टू temp. राइट, क्लियर है. अभी भी डाउट है यहाँ पे, अगर होगा तो इट्स ओके, वी विल सी दिस पार्ट इन द प्रैक्टिकल. मैं आप लोगों को रिवर्स करके भी बता दूंगी. ओके, सो दैट इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंसर्शन एट द स्टार्ट. अभी क्या करना है, तो वी नीड टू इंसर्ट अ न्यू नोड at the last. Remember, whenever you are inserting a new node at the last, you have to traverse your linked list. और लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कब मतलब कहाँ तक करनी है, तो लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ेगी जब तक आप लोगों को नल नहीं मिलता है ना. तभी पता चलेगा कि दैट इज द एंड ऑफ योर लिंक लिस्ट. एंड ऑफ योर लिंक लिस्ट कैसे पता चलता है, बाय ट्रैवर्सिंग द लिंक लिस्ट. और जब भी कभी आप लोगों को लिंक फील्ड में नल आता है, आप लोगों को वहीं पे आपकी सर्चिंग क्या करनी पड़ती, ट्रैवर्सिंग क्या करनी पड़ती है, स्टॉप करनी पड़ती है. जस्ट फॉर एग्जांपल, आई वांट टू इंसर्ट अ न्यू नोड हियर, मुझे यहाँ पे करना है. तो मुझे कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा डायरेक्टली कि दिस इज द लास्ट नोड. वी कैन कम टू द कंक्लूजन दैट दिस इज द लास्ट नोड बाय जस्ट लुकिंग एट द डायग्राम, है ना. सिर्फ डायग्राम को देख के हम लोग ये पता कर सकते हैं. बट फॉर द कंप्यूटर यू हैव टू ट्रैवर्स द लिंक लिस्ट. ओके, तो ट्रैवर्स कब तक करना है, जब तक लिंक फील्ड में नल नहीं आता तब तक करना है. ओके, सो दैट इज द स्टेप नंबर 1 फॉर इंसर्टिंग अ नोड एट द लास्ट. सो फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, ट्रैवर्स SLL अप टू द नल. नल कौन से पार्ट में आएगा, नल आता है नेक्स्ट पार्ट में और लिंक पार्ट में. राइट, तो कौन है. हेलो हाँ गौरव. मैम, कुछ बोला आपने अभी मुझे. नहीं, अच्छा, सॉरी मैम. ओके ओके. सो ट्रैवर्स SLL अप टू द नल. नल कहाँ पे नल आना चाहिए, तो नेक्स्ट पार्ट में या लिंक पार्ट में. सो क्या चेक करना है आप लोगों को, वाइल कंडीशन में, वाइल टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, इट इज नॉट इक्वल्स टू नल. तब तक आप लोगों को क्या करना है, कंटिन्यू ट्रैवर्स करना है. राइट, और लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कौन से स्टेटमेंट से होती है, तो टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट स्टेटमेंट से लिंक लिस्ट ट्रैवर्स होगी. ये हो जाएगा. उसके बाद में फॉलो आर 3 स्टेप्स, दैट इज क्रिएट अ न्यू नोड. न्यू नोड कैसे क्रिएट होगा, तो न्यू नोड क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ अ malloc फंक्शन. ओके, सो यहाँ पे क्यू नाम का एक नोड क्रिएट किया है, दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड. इंसर्ट द डेटा. डेटा किस में इंसर्ट करना है, क्यू में. सो क्यू ऑफ डेटा इज इक्वल्स टू वैल्यू. और अभी क्या करना है, तो यू हैव टू एडजस्ट द पॉइंटर. राइट, पॉइंटर एडजस्ट कैसे होगा, तो थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पे कि सपोज आई एम हैविंग 1 नोड. ओके, मेरे पास ना यहाँ पे एक नोड है पहले, और मैं ट्रैवर्स करके आई हूँ. तो जहाँ पे मुझे नल मिलता है वहां पे मैं इसका नेम क्या दे दूंगी, टेम्प. इसके बाद में क्या किया है मैंने, तो इसके बाद में एक न्यू नोड डाला है, उसका नेम क्या दिया मैंने, क्यू दिया है. अभी क्या करना है, तो सिर्फ पॉइंटर एडजस्टमेंट करना है. टेम्प का लिंक किसको जाके अटैच होना चाहिए, क्यू को, है ना. सो टेम्प ऑफ लिंक इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू. ये हो जाता है पहला आप लोगों का पॉइंटर एडजस्टमेंट. और इसके बाद में कोई नोड नहीं है, इसके बाद में कोई भी नोड नहीं है, तो इसके लिंक पार्ट में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नल. सो ये होते हैं 2 पॉइंटर एडजस्टमेंट फॉर इंसर्टिंग अ न्यू नोड एट द लास्ट. ओके, लेकिन जब भी कभी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंसर्टिंग अ न्यू नोड एट स्पेसिफिक लोकेशन और लास्ट में, तो यू हैव टू ट्रैवर्स. अगर लास्ट की बात कर रही हूँ तो नल तक ट्रैवर्स करना है, और अगर स्पेसिफिक पोजीशन बोल रही हूँ तो मुझे, तो आई कैन ट्रैवर्स बाय डेटा और आई कैन ट्रैवर्स बाय द लोकेशन. ओके, तो ये होता है इंसर्शन एट द लास्ट. नेक्स्ट पार्ट है इंसर्शन एट द स्पेसिफिक लोकेशन. ओके, इंसर्टिंग एट द स्पेसिफिक लोकेशन. सो अगेन लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करना पड़ेगा, इट इज कंपल्सरी. ओके, लिंक लिस्ट ट्रैवर्स किस स्टेटमेंट से होता है, तो लिंक लिस्ट ट्रैवर्स होता है विद द स्टेटमेंट टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट. अब स्पेसिफिक लोकेशन बोल रहा है ना, तो यहाँ पे you can traverse by 2 things. Either you can traverse with the data or you can traverse with the specific location. Just see the diagram. अगर मुझे यूजर ने बोला कि he wants to insert a new node after B, okay? अगर यूजर ने बोला है कि B के बाद में इंसर्ट करना है, तो you can insert a new node after B. और अगर मुझे यूजर ने बोला कि मुझे थर्ड नोड के बाद में इंसर्ट करना है, तो I can insert after the third node. Are you getting? So there are 2 ways for insertion. First way that you can actually check for the data.
मैं डेटा के लिए चेक करके भी इंसर्ट करवा सकती हूँ, और आइदर आई कैन गो फॉर द स्पेसिफिक लोकेशन। अगर यूजर ने बोला फर्स्ट नोड के बाद में तो यहाँ पे इंसर्ट होगा, सेकंड नोड के बाद में तो यहाँ पे इंसर्ट होगा, और थर्ड नोड के बाद में बोला तो यहाँ पे इंसर्ट होगा, फोर्थ नोड के बाद में इंसर्ट नहीं होगा, दैट इज नॉट अ स्पेसिफिक लोकेशन, ओके, बिकॉज दैट विल बी द इंसर्शन एट द लास्ट। गेटिंग दिस पार्ट? तो इन बिटवीन है तो कितनी जगह, ओनली थ्री पोजिशन आर पॉसिबल, बिटवीन ए एंड बी, between B and C, and between C and D. Okay, so this is a insert at specific location or a specific position. तो यहाँ पे आके मुझे क्या करना है? So I will be inserting a new node. अभी यहाँ पे आके इंसर्शन करना है, क्या करूंगी? Again I will just create a new node, that is r is equals to malloc size of struct node. उसके बाद में r of data is equals to value असाइन कर देनी है। उसके बाद में आप लोगों को पॉइंटर एडजस्टमेंट करना है। ये मैंने कल भी बोला था आप लोगों को, किस तरीके से किया था हम लोगों ने। तो जस्ट सी हियर, नो सॉरी, ये मेरा एक नोड है पहले से बनाया हुआ है, ये मेरा दूसरा नोड है जो भी मैंने पहले से बनाया हुआ है। अभी क्या करना है मुझे? सो इन दोनों के बीच में मुझे एक न्यू नोड इंसर्ट करवाना है ना। दिस शुड बी इंसर्टेड बिटवीन दिस फर्स्ट एंड द सेकंड। अभी ट्रैवर्स करना है स्पेसिफिक लोकेशन तक, तो मुझे यूजर ने दिया था कि इस नोड के बाद में देना है, तो जहां आप लोगों का ट्रैवर्सल खत्म होता है उसी नोड को आप लोगों को टेम्प नेम दे देना है। सो दिस इज माय टेम्प नोड, दिस इज अ न्यू नोड जिसको मैंने नाम दिया है सपोज आर, इसको मैंने आर नाम दे दिया है। अभी क्या करना है? तो अभी आप लोगों को पॉइंटर एडजस्टमेंट करना है। किस तरीके से पॉइंटर एडजस्टमेंट होंगे? जस्ट सी हियर, आई एम असाइनिंग सम एड्रेसेस हियर, मैं कुछ यहाँ पे एड्रेसेस असाइन कर रही हूँ, सो आप लोगों को ये थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो दिस इज 200 एंड दिस इज 300, ओके। राइट नाउ टेम्प ये किससे अटैच है? राइट नाउ बिफोर इंसर्शन ये इससे अटैच है, तो इसके अंदर वैल्यू क्या आ जानी है? राइट नाउ इट विल बी 300, ओके। अभी पॉइंटर एडजस्ट करना है। पॉइंटर किस तरीके से एडजस्ट होगा? देखो बहुत सारे ऑनलाइन इसमें यू विल सी कि यहाँ पे ना इस नोड को भी नेम दिया जाता है, बट इस तरीके से हम लोगों को नहीं करना है। नेक्स्ट नोड को कभी भी नेम नहीं देना होता है। विदाउट दैट ऑल्सो यू कैन एडजस्ट द पॉइंटर। चलो, तो अभी ये नोड इंसर्ट होगा इन बिटवीन दिस स्टेम एंड द नेक्स्ट नोड। तो इस आर के अंदर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? तो आर के अंदर आना चाहिए 300, राइट। आर ऑफ नेक्स्ट में क्या आना चाहिए? तो 300 आना चाहिए। लेकिन राइट नाउ 300 एड्रेस किसके पास है? तो 300 एड्रेस द टेम्प ऑफ नेक्स्ट के पास, राइट। किसके पास है? टेम्प ऑफ नेक्स्ट के पास है। तो किसको वैल्यू असाइन करनी है? तो आर ऑफ नेक्स्ट को वैल्यू असाइन करनी है। तो आर ऑफ नेक्स्ट कहाँ पे आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा। किसकी वैल्यू असाइन करनी है? तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू असाइन करनी है। तो हियर आई विल बी राइटिंग टेम्प ऑफ नेक्स्ट। समझ में आ रहा है? अगर ये करते हो तो ये जो है एक वाला कनेक्शन आप लोगों का एस्टैब्लिश हो चुका है, एंड स्टिल दिस कनेक्शन इज देयर। टेम्प और उसके नेक्स्ट वाले का कनेक्शन इज स्टिल देयर। कोई किसी को प्रॉब्लम है? कोई 79 क्या कर रहे हो? राइट, सो ये हो जाता है। ये कनेक्शन अभी भी है। अभी क्या करना है? तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट अभी राइट नाउ 300 एड्रेस स्टोर कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली किसका एड्रेस स्टोर करना चाहिए? नेक्स्ट नोड का। तो इसके बाद में अभी कौन आना है? आर आना है। तो ये किसको जाके अटैच होगा? तो ये जाके अटैच होगा टेम्प ऑफ नेक्स्ट टू द आर। तो यहाँ पे क्या लिखना है आप लोगों को? टेम्प ऑफ, ओके। सो व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाट? क्यू। तो ये अभी ये कनेक्शन गया आप लोगों का, और ये नया कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, एंड यू हैव successfully inserted a new node in between temp and the next node. Clear है ये? Without diagram कोशिश भी मत करना, इतनी अभी आप लोगों की इमेजिनेशन आएगी नहीं कि आप लोगों को विदाउट डायग्राम ड्रॉ करे यू कैन इमेजिन द थिंग्स, है ना। सो बिफोर स्टार्टिंग इट इज कंपल्सरी कि आप लोग कोई डायग्राम बना लो। अभी ये प्रॉब्लम है किसी को? चलो, मैम टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू क्यू, वो समझ में नहीं है। क्यू टेम्प, अरे ये क्यू नहीं है, आर है ये, इट इज आर, ओके, इट शुड बी आर। टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू आर। ये समझ में नहीं आया? ओके, वो आ गया, क्यू था ना इसलिए नहीं समझ में। ओके। चलो, तो ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट एल्गोरिथम आप लोग लिखोगे, जितने मुझे स्क्रीन शेयर करके बताएंगे उतने ही लोगों की मैं अटेंडेंस करने वाली हूँ। तो अभी आप जितने लोग आ गए ना, 65 64 हो चुके हैं, 63 हो चुके हैं, 60 थे, सो देयर इज नो कोई पॉइंट नहीं है। मैं सबको बोलूंगी स्क्रीन शेयर करने के लिए। स्क्रीन शेयर करोगे, कंप्लीट होगा तो ही अटेंडेंस आज की मिलेगी,
अदरवाइज नहीं मिलेगी. तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द डबली लिंक लिस्ट. आई एम स्टार्टिंग विद द डबली लिंक लिस्ट. अगेन अ वेरी इजी. अब अगर आप लोगों को सिंगली लिंक लिस्ट का पता चल गया होगा तो इट इज वेरी इजी. तो क्या बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट में? व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ डबली? इट इज कॉल्ड एज अ डबली बिकॉज इट विल स्टोर एड्रेस ऑफ द टू नोड्स. अगर मेरे पास पहला नोड है तो वो उसके पहले वाले का भी एड्रेस स्टोर करेगा और उसके नेक्स्ट वाले का भी एड्रेस स्टोर करेगा. सो द डबली लिंक लिस्ट विल स्टोर टू एड्रेसेस, द प्रीवियस नोड एड्रेस एंड द नेक्स्ट नोड एड्रेस. तो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन कैसे होगा? तो स्ट्रक्ट डी नोड मत लिखना, हाँ स्ट्रक्ट नोड ही लिखो. सो struct node pointer of previous integer data and struct node pointer of next. तो इसका मतलब क्या? तो डबली लिंक लिस्ट का एक नोड किस तरीके से दिखता है? तो डबली लिंक लिस्ट का नोड दिखता है इस तरीके से, राइट? दिस इज कॉल्ड एज अ प्रीवियस, PREV. ओके, सो दिस इज प्रीवियस एंड दिस वन इज अ नेक्स्ट. ये होता है डबली लिंक लिस्ट. और बीच में क्या आ जाता है? एड्रेसेस के इन बिटवीन यू हैव टू स्टोर द डेटा. तो ये हो गया आप लोगों का डेटा पार्ट. क्लियर? सो ये हो जाता है आप लोगों का डबली. डबली में भी क्या है? सेम होगा, इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा. इंसर्शन में भी तीन जगह पे लोकेशन पे यू कैन इंसर्ट एट द फर्स्ट, इंसर्शन एट द लास्ट एंड इन बिटवीन. तो ये हो जाता है आप लोगों का डबली का. नाउ मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ और समझ लो. चलो ये हो गया आप लोगों का डबली लिंक लिस्ट. सो फर्स्ट लिंक है तो फर्स्ट नोड है, सेकंड नोड है, थर्ड है एंड द फोर्थ वन. जो लास्ट वाला नोड होगा उसके नेक्स्ट में नल आएगा और जो फर्स्ट नोड होगा उसके फर्स्ट में नल आएगा. क्यों? बिकॉज इसके पहले कोई नहीं है, ए नोड के पहले कोई नहीं है, तो उसके पास एड्रेस स्टोर करने के लिए कोई नोड ही नहीं बचता है. दैट इज द रीजन व्हाई फर्स्ट नोड के प्रीवियस में आएगा नल और लास्ट नोड के लास्ट में आएगा नल और नेक्स्ट नोड में आएगा नल. अभी ये ए जो नोड है वो किसका एड्रेस स्टोर करेगा? तो A will store the address of a B और B again it is divided into two parts, है ना? B किसका एड्रेस स्टोर करेगा? उसके प्रीवियस नोड का. तो B के प्रीवियस में कौन है? A है. तो B A का भी एड्रेस स्टोर करेगा और B का जो नेक्स्ट फील्ड है वो किसका एड्रेस स्टोर करेगा? तो इट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट, दैट इज C. C अगेन किसका एड्रेस स्टोर करेगा? प्रीवियस का, B का भी करेगा और C D का भी करेगा. और D का क्या किसका एड्रेस स्टोर करेगा? D स्टोर करेगा उसके प्रीवियस का एड्रेस इन अ प्रीवियस पार्ट, दैट इज C का एड्रेस. एंड D के लास्ट में कोई भी नहीं है ना? D के आगे कोई भी नहीं है तो इसका नेक्स्ट फील्ड क्या करेगा? तो इसका नेक्स्ट फील्ड स्टोर करेगा नल. गेटिंग दिस पार्ट? ओके. नाउ आई होप सभी के पास पेन है और नोटबुक आप लोगों के पास है. आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम. आई वांट यू टू राइट द एल्गोरिथम. एल्गोरिथम डिवाइड होगा इन 3 पार्ट्स. The first part, create a new node, insert the data and assign the pointer. I'm drawing the diagram here. I want you to write algorithm for that particular diagram, right? So chalo, this is the node I'm drawing. So ये हो जाता है मेरा doubly linked list. इसको name दे दिया है मैंने start, right? इसको मैंने नाम क्या दे दिया है? start. This is the previous, PREV. ये है PREV, previous, and this is the next. ये नोड है. आई एम क्रिएटिंग द नोड फॉर द फर्स्ट टाइम. आई एम क्रिएटिंग द फर्स्ट नोड इन माय लिंक लिस्ट. तो इसके आगे भी कोई नहीं है तो यहाँ पे भी आ जाएगा नल और इसके बाद में भी कोई नहीं है तो यहाँ पे भी आ जाएगा नल और यहाँ पे मुझे वैल्यू असाइन करनी है 10. सो आई हैव असाइंड वैल्यू एज अ 10. ट्राई टू राइट एल्गोरिथम फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम. ये डायग्राम के लिए आप लोगों को एल्गोरिथम लिखना है. 3 पार्ट में डिवाइड करना है. क्रिएट ए न्यू नोड, इंसर्ट द डेटा, असाइन द पॉइंटर. ट्राई करो. चलो, खुद से नहीं करोगे तब तक ये आएगा नहीं. और अगर नोटबुक और इस पे नहीं लिखना है तो यू कैन ऑल्सो पुट द मैसेज इन चैट बॉक्स. हाँ, मैं वहां से भी चेक कर सकती हूँ. क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन रिपीट करूँ? ओके, क्वेश्चन रिपीट करूँ. Okay, see, I want you to write algorithm for this. Okay, I want you to write algorithm for this particular diagram. क्या किया है? start बनाया है. Okay, this is the first node. इसके आगे भी कोई नहीं है, इसके पीछे भी कोई नहीं है तो previous में भी null आएगा, next में भी null आएगा और data part insert किया है मैंने 10. जो हम लोगों ने first में देखा था ना, उसी तरीके से आप लोगों को ये लिखना है. If you want me to share the first ये वाला तो देख लो. You can see this algorithm. इसके बेसिस पे ट्राई करो डबली का एल्गोरिथम लिखने का.
गौरव हो चुका है, गुड। जिनका हो गया जस्ट पुट मैसेज इन द चैट बॉक्स, तो मुझे समझ में आ जाएगा। गुड। इन्हीं लोगों का हुआ अब तक। किसी का हुआ है? ओके। ओके। चलो हो गया है। कितने लोगों का हुआ? इवन यू नो। यस। ओके। कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? जस्ट रेज योर हैंड। क्या आप लोग नहीं लिख पा रहे हो? दिस इज अ यूनिट विद द हाईएस्ट वेटेज, राइट? सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं, प्रैक्टिकल के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया? ओके। गौरव क्या लिखा? स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ प्रीवियस। ये क्या है? ये क्या लिखा? स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ प्रीवियस। वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग सर्कुलर, वी आर इम्प्लीमेंटिंग डबली। डायग्राम में क्या दिख रहा है? स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट में क्या दिख रहा है? नल है ना? चेंज करो। 21। यस। अनम्यूट करो। मैम स्टार्ट ऑफ प्रीवियस इक्वल टू नल और स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल, उसके बाद कुछ आएगा या नहीं? कुछ नहीं, हम लोग अभी सिर्फ पहला ही नोड बना रहे हैं। दैट्स इट, है ना? ओके। ओके। हाँ 2 मिनट में मैम। हाँ हाँ हाँ। मैम उसमें मैंने पहले आपने जो बोला ना नॉर्मल वाला स्टार्ट ऑफ प्रीवियस इक्वल्स टू नल लिखा, स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू नल लिखा, ठीक है मैम। मेरे को लगा कि अभी देखो प्रीवियस के अंदर पहले नल डाला और फिर नेक्स्ट का जो पॉइंटर है वो भी नल प्रीवियस की तरफ ही पॉइंट करूंगा तो भी वो नल ही हो जाएगा ना? ये एक्चुअली क्वेश्चन था मेरे को। नो नो नो। अगर मैंने वो स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट का वो मैंने प्रीवियस को दे दिया, इट इज नॉट अ प्रीवियस एक्चुअली।
वो नल ही लिखना पड़ेगा, राइट? ओके मैम, हाँ मैम अंडरस्टूड, ओके मैम। ओके, कौन है स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट? ओके 37 नंबर, इट्स करेक्ट। देन मैम बहुत दिस, सिंपल हो गया। यस इट इज वेरी, एक्चुअली मैं वही बोल रही हूँ, अगर सिंगली पता चल जाएगा ना ये, इट्स वेरी इजी। तो रोल नंबर 19, temp of POS, have you taken the POS or the previous? I hope so you have taken the POS. POS मतलब next node है। roll number 19, सुन रहे हो? और सेम है, ओके देन इट्स ओके, इट्स करेक्ट। चलो डन। अभी फ्रैंकली बोल दो, बिकॉज मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, कितने लोगों ने नहीं किया है, बिकॉज मैं कर सकती हूँ एक एक रोल नंबर को बोल के, आई कैन आस्क यू टू शेयर द स्क्रीन, बट ये पूरा का पूरा टाइम पास होगा। कितने लोगों ने नहीं किया है? देखो करना होगा तो आई विल स्टार्ट। हाँ, रोल नंबर 1 किया है? डन? यस। रोल नंबर 2? Yes, ma'am. ओके। रोल नंबर 3? યસ મેમ. કોઈ નથી કર્યું, હવે બોલી જાઓ, ચાલો મને ટાઈમ પાસ નથી કરો। યસ, રોલ નંબર 40, ઇટ્સ કરેક્ટ, ગુડ। શુડ આઈ અઝ્યુમ ધેટ કે તમે બધાએ કરી લીધેલું છે? कोई नहीं हो, कोई हंसे, कोई होगा अगर जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज आस्क। यस 78 बोलो। मैम उसमें मैंने पहले ये जो प्रीवियस वाला था ना वो किया, हाँ। ठीक है, फिर मैम उसमें मुझे यही लगा कि मैम अगर मैंने नेक्स्ट के अंदर ऑलरेडी नल दिया है तो मैं प्रीवियस को नेक्स्ट की तरफ पॉइंट क्यों नहीं कर सकता? वो ऐसे नहीं होता है। सी, अगर मैं इसको लास्ट वाले को, अगर फर्स्ट वाले को ही पॉइंट आउट कर रही हूँ, दैट विल बी, ये सिर्फ समझना है, यहाँ पे मैंने ये, इसको मैंने ये प्रीवियस दे दिया है। सो प्रीवियस में है क्या? अभी कुछ भी हो सकता है ना, गार्बेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम लोगों को उसको एक्सप्लिसिटली क्या बनाना पड़ेगा? नल बनाना पड़ेगा, है ना? इट इज नॉट ओके। मैंने क्या किया कि वो जो नेक्स्ट वाला है ना उसके अंदर हाँ। नल डाला, और जो प्रीवियस है ना अच्छा, उसको अच्छा। नेक्स्ट की तरफ पॉइंट किया, है ना नहीं 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 नहीं। मैम? वो ओके मैम वो लगा मुझे कि ऐसा हो सकता है, इसलिए मैम तो वो पॉइंट किसकी तरफ करेगा किसी अगर के भी मैंने तरफ प्रीवियस नहीं को किया तो? करेगा। किसको प्रीवियस का? मैम जैसे मैंने नेक्स्ट के अंदर नल डाला और हाँ। मैंने प्रीवियस को नेक्स्ट की तरफ पॉइंट किया, तो प्रीवियस के अंदर हाँ। क्या आएगा? प्रीवियस के अंदर नेक्स्ट का कुछ आ जाएगा। एंड व्हाट इज अ नेक्स्ट? एक्चुअली अ नेक्स्ट, इट इज अ पॉइंटर ओनली। तो वो पॉइंटर के अंदर कभी ऐसा भी हो सकता है कि इफ दैट इज अ डैंगलिंग पॉइंटर, तो वो एक गार्बेज वैल्यू भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है ना। चलो तो ये हो जाता है अच्छा, हम मतलब लोगों का। वो हाँ हाँ, यस पॉइंटर का भी एड्रेस ले सकता है? यस, वो कुछ भी ले सकता है, बिकॉज व्हाट इज द स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर ऑफ प्रीवियस एंड दैट थिंग, ये क्या है? तो ये सिर्फ पॉइंटर है ना, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, उसको नल लिखना ही पड़ेगा। ओके चलो, हो गया। अभी अब किसी को और डाउट है? हाँ मैम। अभी इसके हेलो? आगे मैं, यस कौन है? रोल नंबर तुम ही हो, बोलो। मैम हाँ, जो मैंने किया वो सर्कुलर पॉइंटर नहीं हुआ फिर? सर्कुलर भी नहीं हुआ वो गौरव। अगर सिर्फ वो डायग्रामेटिकली देखोगे ना, यू विल फील लाइक दैट इज अ सर्कुलर पार्ट, लेकिन वो प्रीवियस और नेक्स्ट के अंदर कुछ होता ही नहीं है, हम लोगों को उसको असाइन करना पड़ता है ना? तो मैम ये डब्ल्यू भी नहीं हुआ फिर? क्यों डबली नहीं हुआ? अच्छा नहीं डब्ल्यू हुआ, सॉरी, दो एड्रेस है। दो एड्रेस है उसमें। यस मैम। देन अभी आई एम ड्रॉइंग द नेक्स्ट डायग्राम। और क्या कर रही हूँ मैं? नाउ एक्चुअली आई एम इंसर्टिंग अ न्यू नोड एट द स्टार्ट। अभी मैं स्टार्ट पे कोई नोड इंसर्ट करवा रही हूँ, तो इसका मतलब किसके पहले नोड इंसर्ट होना है? तो ये स्टार्ट के पहले नोड इंसर्ट करना है। सो व्हाट आई विल ड्रॉ हियर, व्हाट आई विल डू हियर, आई विल जस्ट ड्रॉ वन नोड। डबली लिंक लिस्ट है तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2 पार्ट में डिवाइड होगा। नाउ इसका नेम है टेम्प। इसका नेम क्या है? द नेम ऑफ दिस लिंक लिस्ट इज, सॉरी,
द नेम ऑफ दिस नोड इज अ टेम्प. नाउ टेल मी द पॉइंटर एडजस्टमेंट. इसको क्या वैल्यू असाइन होनी चाहिए? सपोज यहाँ पे मैंने डेटा वैल्यू भी डाल दी है, दैट डेटा इज 20. ओके, द डेटा इज 20. टेल मी, दिस इज द फर्स्ट नोड. इसके पहले कुछ भी नहीं है. ओके, टेम्प के पहले कुछ भी नहीं है राइट नाउ. तो ये टेम्प के इसमें क्या आएगा? और एक बात याद रखना, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ डबली लिंक लिस्ट, तो 2 एरोज निकलते हैं. एक एरो निकलता है फॉर द नेक्स्ट नोड, और जो नेक्स्ट नोड होगा उसका एक एरो निकलता है टू द प्रीवियस वन. तो टेल मी पॉइंटर एडजस्टमेंट हियर. क्या होगा? पॉइंटर एडजस्टमेंट किस तरीके से होगा? यहाँ पे टेम्प के प्रीवियस में क्या आएगा? What should come in the temp Null of आएगा। previous? Null आएगा. Yes. क्यों null Null. आएगा? Null आएगा। Yes. Good. Good. क्योंकि Because आगे इसके कोई आगे नोड नहीं है। yes. So it should be null. अभी एक चीज next thing के yes. Good. अभी क्या Temp करना है? next equal to start. Yes. Temp of next. ये जो next field है, इसमें किसका एड्रेस आना चाहिए? Start के नोड का. So what you will write? Temp of next is equals to what? Start. चलो, तो ये वाला भी एक हो गया मेरा. Okay? ये वाला नहीं है. हाँ? ये जो है ये अभी नहीं होगा, ये हम लोगों को एडजस्ट करना है. तभी क्या लिखूंगी? और एक पॉइंटर एडजस्टमेंट बाकी है. कौन सा बाकी है? ये स्टार्ट किसका एड्रेस स्टोर करना चाहिए राइट नाउ? स्टार्ट का प्रीवियस किसका एड्रेस स्टोर करना चाहिए? टेम्प का, है ना? गेटिंग? सो ये स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट क्या होगा? तो स्टार्ट ऑफ प्रीवियस क्या होगा? स्टार्ट ऑफ प्रीवियस होगा टेम्प. ओके, और एक चीज बाकी है. क्या बाकी है? तो नेम चेंज करने पड़ेंगे. किसके नेम चेंज करना है? स्टार्ट और टेम्प के. So what you will write? You will just write start is equals to what? Start is equals to temp. हो गया हमारा एक एल्गोरिदम. क्या कर लिया हम लोगों ने? तो हम लोगों ने at the first value insert करवा दी. समझ में आ रहा है? चलो और एक बार समझ लो. मेरे पास ऑलरेडी एक नोड था, उसके पहले मैंने एक नोड इंसर्ट किया, उसका नेम दे दिया है मैंने सपोज temp. 3 पार्ट में मैं एल्गोरिदम को डिवाइड करूंगी. दैट इज फर्स्ट स्टेप, इंसर्ट क्रिएट अ न्यू नोड. सो temp is equals to malloc size of struct नोड करके मैंने एक नोड बना लिया. उसके बाद में क्या करना है? तो आप लोगों को उसको डेटा असाइन करना है. सो temp of data is equals to what? temp of data is equals to 20. लास्ट में क्या करना है? पॉइंटर एडजस्ट करना है. पॉइंटर एडजस्टमेंट कैसे होगा? तो temp के पहले तो कोई नहीं है, तो इसके प्रीवियस में क्या आ जाएगा? नल. अभी temp के बाद में कौन सा नोड आना है? स्टार्ट आना है. तो temp of next क्या होगा? स्टार्ट. और स्टार्ट का प्रीवियस किसका एड्रेस स्टोर करेगा? उसके पहले वाले नोड का. तो स्टार्ट के पहले कौन है अभी? temp. तो स्टार्ट ऑफ प्रीवियस इज इक्वल्स टू व्हाट? temp. और लास्ट में क्या करना है? वैल्यू को सिर्फ असाइन करना है. किसकी वैल्यू किसको असाइन होनी चाहिए? तो राइट नाउ टेम्प के अंदर जो भी कोई वैल्यू होगी वो वैल्यू असाइन करनी है आप लोगों को स्टार्ट को. सो व्हाट यू विल राइट स्टार्ट इज इक्वल्स टू टेम्प. समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट एल्गोरिदम ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट, दैट इज इंसर्टिंग अ न्यू नोड एट द स्टार्ट. सो क्या किया है देख लो एक बार. टेम्प इज इक्वल्स टू malloc size of struct node. temp of data is equals to value and adjust the pointer. So temp of next is equals to what? Start. है ना? temp पहले था, उसके बाद में start था. So temp of next is equals to start. temp के previous में क्या आएगा? अगर उसके पहला कोई भी नहीं होगा तो temp of previous is equals to null. और start के previous में किसका एड्रेस जाना चाहिए? तो temp का जाना चाहिए. और लास्ट में क्या करना है? तो temp के अंदर जो भी कोई वैल्यू थी, तो वैल्यू किसको असाइन करनी है? तो वो वैल्यू असाइन करनी है आप लोगों को स्टार्ट को. तो ये हो जाता है इंसर्शन एट द फर्स्ट. समझ में आ रहा है? I hope so you are getting this part, huh? Only 4 minutes are remaining. Okay, I will stop here because next algorithm होगा भी नहीं. Yes, Gaurav? मैम एक नोड बनाया और उस नोड में मैम जैसे हम लोगों ने एड्रेस के लिए 2 हम पॉइंटर क्रिएट करते हैं ना. अब जैसे डब्ल्यू में 2 करते हैं, तो मैम वो जो पॉइंटर्स है उनका भी कुछ अलग एड्रेस होता होगा, है ना? कौन से पॉइंटर का मतलब क्या बोल रहे हो? हम एक बार आप पीछे जा सकते हैं स्लाइड्स में. ये वाला? ये वाला? हाँ यस मैम. मैं फिगर देयर इज नो फिगर. ये वाला फिगर है. चलो मैम ये यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो. हाँ मैम जैसे ए का नेक्स्ट हो गया, ठीक है. अब एक नेक्स्ट के लिए मैंने एक पॉइंटर बनाया नेक्स्ट करके, है ना? नेक्स्ट 1 करके, और वो एक पॉइंटर है ना मैम? और बी का एक पॉइंटर है नेक्स्ट के लिए ही, जो नेक्स्ट 2 है. और बी के लिए एक और मैंने बनाया प्रीवियस. अभी ए का प्रीवियस में ले ही नहीं रहा. अभी मैंने क्या किया? बी का
प्रीवियस भी एक बनाया, बेसिकली अभी 3 पॉइंटर बनाए मैंने। ए का नेक्स्ट है, बी का प्रीवियस है और बी का हाँ। नेक्स्ट है। हाँ। अब मैम इसमें क्वेश्चन ये है कि जैसे ए का नेक्स्ट है मेरे पास और हम्म, वो जो पॉइंटर बनाया है वो पॉइंटर का भी कुछ ना कुछ तो भी एड्रेस होता होगा। बिल्कुल उसका पॉइंटर का एड्रेस होता है, मतलब एड्रेस होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटर एक्चुअली क्या क्या स्टोर करेगा, तो वो दूसरे का एड्रेस स्टोर एड्रेस करता है। लेकिन अगर सपोज आई हैव रिटन स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर ऑफ नेक्स्ट, तो उसका खुद का भी कोई एड्रेस होगा ऑब्वियसली। ओके, कोई तो भी मैम चीज। हाँ, हाँ। ये जो बी का प्रीवियस है ना, हाँ। ये ए के डेटा का एड्रेस लेगा या फिर ए के नेक्स्ट का एड्रेस लेगा? नहीं नहीं गौरव, मतलब सुनो, ये अगर अगर मैं यहाँ पे 100 बोल रही हूँ ना, समझो यहाँ पे, इफ आई एम सेइंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड इज 100, तो ये पूरे के पूरे नोड का एड्रेस होता है। व्हाट इज अ स्ट्रक्ट नोड एक्चुअली? स्ट्रक्ट नोड तीन पार्ट के को मिला के बनाया है। 3 पार्ट कौन से है? ये प्रीवियस है के, ये डेटा है और एक नेक्स्ट है। तो if I'm saying that 100 is the address of the a node, meaning is that this is the address of a whole node. सिर्फ प्रीवियस का नहीं होता है, सिर्फ नेक्स्ट का नहीं होता है, बट प्रीवियस, नेक्स्ट और डेटा को मिला के बनता है। समझ में आ रहा है? बिकॉज क्या बोल रहे हैं हम लोग, Yes. स्ट्रक्चर बोल रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग हाँ। अबाउट अ स्ट्रक्चर। ये पूरे 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 के पूरे स्ट्रक्चर का ही एड्रेस होगा। तो मैम क्वेश्चन फिर ये है कि बी का जो प्रीवियस है उसको मैं पॉइंट किसकी तरफ करता हूँ, ए के डेटा की तरफ करता हूँ या फिर ए की तरफ करता हूँ तो वो ए का एड्रेस लेगा या फिर ए ए का का जो एड्रेस डेटा लेता है है, मतलब ये। और मैम हाँ, हाँ वो नोड का एड्रेस ले लेगा, पूरे नोड का। पूरे नोड तो का। हमको ए एड्रेस करना होगा, ए को एक्सेस करना होगा कभी भी, तो हम हाँ। ए के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और लिंक को भी एड्रेस कर सकते हैं फिर बी से। बट हाँ, यू कैन, बट कभी भी अगर इफ यू टॉक अबाउट अ डेटा स्ट्रक्चर्स का, तो डेटा स्ट्रक्चर्स एक्चुअली डील विद द डेटा, सिर्फ डेटा के साथ ही डील करोगे। नो डाउट यू कैन एक्सेस द एड्रेस ऑफ ए का प्रीवियस एंड ए का नेक्स्ट, आप वो सब कर सकते हो, बट हम लोग इंटरेस्टेड किस में होंगे? ओनली द डेटा पार्ट। गेटिंग? मुझे क्या अच्छा। लगेगा, तो मुझे सिर्फ डेटा ही लगना है। आई डोंट वांट द एड्रेस ऑफ ए का, ए प्रीवियस एंड द नेक्स्ट। गेटिंग दिस पार्ट? लेकिन ऐसा हो सकता है ना, जैसे अगर मुझे हाँ। सी से ए एक्सेस करना है तो मैं सी से पहले बी का वो जो Yes. प्रीवियस वाला पार्ट है वो करता हूँ, है ना? यस, बिल्कुल। और सी फिर के प्रीवियस से मैं बी पे जाऊंगी, राइट? तो बी पे से मैं बी के प्रीवियस पे से आई कैन गो टू द ए। दैट इज रीजन व्हाई वी हैव अ डबली लिंक लिस्ट, सो दैट यू कैन ट्रैवर्स बैक। ओके मैम, अंडरस्टूड। चलो, तो डन। जिन आई थिंक यू ऑल हैव लैब राइट नाउ, सो यू मे लीव। जिनकी मेरी लैब है वो लोग रुकेंगे, बाकी सब निकल जाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू एंड दिस मीटिंग, तो अपने आप चले जाना। अगर कोई सो गया होगा तो उठ जाओ।